واہ. اور کہا جائے گا ادخلوها بالسلام، اللہ اس میں داخل ہو جاؤ سلام کہتے سلامتی کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر سدیر صاحب کی آواز تبدیل ہوئی اور ماشاء اللہ. دقت آئی ہوئی. واہ. اور پیچھے سننے والے جو تھے وہ بھی عرب تھے، ظاہر بات ہے، نیچرلی انہوں نے بھی اس کو سمجھا، اس کیفیت کو محسوس کیا اور ان کی بھی کیفیت بدل گئی. واہ. اس نے میری زندگی بھی بدل دی. سبحان اللہ. یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا. اس سے پہلے ابھی میں نے بتایا پڑھی میں نے، جی سر جی، لیکن بس عربی کے دور پہ پڑھی جس طرح ہم سب پڑھتے ہیں سر روٹین میں. لیکن ان کی تلاوت کے بعد میرے ذہن میں ایک بات پیوست ہو گئی کہ یہ جو کیفیت ہے نا، جو کیفیت، یعنی امام کعبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اور ہم جو پاکستانی یا دوسرے مسلمان نان عربک جو جی نہیں آتی وہ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں. ہاں واہ واہ. اس بات سے سر وہ آپ کی بڑی خوبصورت اگلے دن آپ وہ کلاس میں بڑا انہوں نے عامر بھائی نے بڑی پیاری جو خوبصورت بات کی ہوئی تھی کہ محفل میں رونا پھر بھی آسان ہوتا ہے، تنہائی میں رونا بہت مشکل ہے. تو یہ بھی شاید وہ والی بات ہے کہ وہ چلیں وہ محفل میں تھے، ان پہ بھی دقت آ رہی ہوگی اور وہ زبان بھی سمجھتے تھے. ہماری زبان بھی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں وہ رو رہے ہیں چلو ہاں جی، اور ہم بھی رو لیتے ہیں، وہ اپنے ہی گناہ یاد کر کے شاید انسان سے وہ ایسے ہی. لیکن بہرحال میں نے کہا کہ یہ کیفیت جو آئی ہے جی، یہ کیفیت قرآن مجید کی زبان کو ڈیٹیل میں سمجھے بغیر، گہرائی میں اترے بغیر نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد پھر یہ عامر سہیل تھا ماشاء اللہ، اور فیصلہ آباد تھا. واہ. میں نے جگہ جگہ مزید کلاسز کی تلاش شروع کر دی. ماشاء اللہ. اس لیے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ چونکہ تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی ڈیوٹیز مختلف جگہوں پہ لگتی رہتی تھی، تو ان دنوں میں وہ ملک سے باہر تھے. اچھا سر. ورنہ میں ان کے پاس دوبارہ چلا جاتا اور کہتا جی آپ کب کلاس شروع کر رہے ہیں. ہاں جی. وہ پاکستان اویلیبل نہیں تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں نے جگہ جگہ کلاسز چھوڑی اور الحمدللہ مجھے مل گئی، اپنے شہر میں کچھ کلاسز ملی. ماشاء اللہ. میں نے وہ کلاسز جوائن کی، لیکن جو میں چاہ رہا تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا. میں نے ایک 3 ماہ کی کلاس جوائن کی، ناکام رہا. اچھا. میں نے پھر ایک کلاس جوائن کی، چند دن گیا، میں اس نتیجے پہنچا کہ نہیں جو میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں نا اس کیفیت کے لیے وہ نہیں پوری ہو رہی، وہ تشنگی ہے، اس سے نہیں حاصل ہوگی. یعنی جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں سمجھ اس کے لیے بالکل اس کے اندر اترنا پڑنا. واہ واہ. میں اس کے بعد عامر بھائی ایک گیا مدرسے میں، جی ہاں ہمارے قریب مدرسہ کر کے. اچھا سر. اس کے محکمے میں بہت اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ضائع ہے. آمین آمین. میں نے ان سے گزارش کی تھی مجھے عربی سے. پہلے تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنی ہے. اچھا روایتی سوال. بالکل. میں نے کہا جی میں قرآن سمجھنا چاہ رہا پڑھوں سنوں تو میں چاہتا ہوں میرے سمجھ میں آئے. ماشاء اللہ. کہتے چلیں گے آپ آ جائیں. اچھا. میرے پاس آ جائے. میں نے ان کے پاس جانا شروع کر دیا، انہوں نے ٹائم دیا، ان کی مہربانی. بے شک بے شک. لیکن جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا وہ بہت ٹف ٹائم دیا. اچھا یعنی وہ بگانے والا ٹائم دیا کہ دوبارہ نہیں آئے گا عربی سیکھنے. وہ اس وجہ سے کہ مدارس کا اپنا ایک سلیبس ہے. ہاں سر. مدارس کا اپنا ایک سٹائل ہے. ہاں وہ درس نظامی والا وہ جو 8 سال 9 سال 11 سال وہ اس دنیاوی جو لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کی، ہمارا جو ریگولر ایجوکیشنل کریکولم اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس سے ڈفرینٹ ہے. مطلب ان کی بات ہمیں سمجھنی مشکل لگتی ہے. علم ان کے پاس بہت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور یقین مانے کہ واقعی اگر علم کی بات کی جائے تو واقعہ نہیں ہوگا کہ اصل علم انہی کے پاس. ماشاءاللہ. اچھا اس لیول پہ وہ سیکھتے ہیں. لیکن وہ جو کمیونیکیشن کیا ہے وہ بہت بڑی بہت ویری انفارچونیٹ ویری انفارچونیٹ. تو میں نے 1 مہینہ کسی طرح جو ہے وہ سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے کتاب پڑھنے کی کوشش کی. اچھا سر. انہوں نے پڑھا بھی دی. اچھا. میں نے پڑھ بھی لی. اچھا. لیکن میرا مقصد حاصل. میں سمجھ گیا. اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا تو آپ کو آگے انشاءاللہ اللہ. جی سر. مزہ آئے گا. جی سر. میرے ساتھ نا 2 اسٹوڈنٹس اور آتے تھے. اچھا. جو محترم صاحب تھے انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ
फलां साहिब है, अच्छा तो अगर नाम ले लिया, मैं भी ठीक। नाम ले लेता हूँ, लेकिन सही सही सही। शहजाद उनका ये नाम है, ठीक है सर। आर्किटेक्ट है छोटे के पास से, अच्छा माशाल्लाह। और वो तर्जुमा सीख रहे थे उनसे। अच्छा उनका तरीकाकार क्या था, मोहतमिम साहब उन्हें एक रुकू का तर्जुमा सुना देते थे, ठीक है सर। वो सुन लेते थे, उसे याद करते थे, अगले दिन आके वो तर्जुमा सुनाते थे, अगला अच्छा तर्जुमा ले लेते थे, वो इस अल्लाह। तरह से सीख लेते। अच्छा 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 अच्छा। अब वो जाहिर बात है याद करना आसान काम है, वो याद कर लेते थे, सुना लेते थे। और सर ये लफ्जी तर्जमा या बा मुहावरा? बाहर। बा मुहावरा, ठीक। और मैं पढ़ रहा था उनसे ग्रामर, जी और उनकी पढ़ाई ग्रामर समझ नहीं आ रही थी, तो वो जो सवाल मुझसे करते थे ना, मैं जवाब नहीं दे पाता था, सीधी सी बात। सही। तो एक दिन तंग आकर उन्होंने ना शहजाद साहब की तारीफ में उनके सामने मुझे कहा कि शहजाद साहब आपसे ज्यादा लाएंगे। अच्छा मैंने कहा बिल्कुल लाएंगे, हाँ चीजें याद हो जाती हाँ हैं। हाफजा अच्छा है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह की देन मुझे बता हाँ, बेशक। एक महीना मैंने किस तरह के सामने गुजारा, और मुझे पता चला कि डॉक्टर अब्दुल समी साहब जो है वो पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आए हैं, अच्छा और आते ही उन्होंने, अब जो आपने मदीना टाउन वाली बात की, जी सर। वहाँ की एक मस्जिद थी, इत्तेफाक मस्जिद, अच्छा वहाँ पे क्लास अरेंज किया। अच्छा और वो क्लास 3 माह, अच्छा इससे पहले जो मैंने क्लास पढ़ी थी ना, जी वो क्लास सिर्फ 40 रोज की, अच्छा ठीक है। 40 रोज वर्सेस 3 मंथ्स, ठीक है। रोजाना क्लास होती थी, और ये 3 इशा माह के की बाद। क्लास थी, और 1 घंटा रोज क्लास होती थी, तो जाहिर बात है आपको ज्यादा हाँ जी, कम होगी। नेचुरली। तो मैंने उस मदरसे को खैराबाद था, और डॉक्टर तस्मी साहब की वो दूसरी क्लास में ज्वाइन किया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस क्लास के दौरान उस्ताद मोहतरम डॉक्टर तस्मी साहब ने एक दिन इस बात का इज़हार कर दिया कि अगली क्लास इंशाल्लाह आमिर सुहेल पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, अमेजिंग। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैं बैठा ही कमाल है। इस नियत से था उस क्लास में, मैं अपने उस्ताद को देखा करता था, और मैं सोचा करता था कि एक दिन आएगा वाह मैं भी यहाँ खड़ा होऊंगा और इस तरह लोगों को पढ़ाऊंगा। माशाल्लाह। यानी दाई बनने का जो शौक था वो, जो मैं समझ पा रहा हूँ और हमारी ऑडियंस शायद समझ पा रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी इनेट नेचर में वो बिल्ट इन था। बिल्कुल, वो एक तजस्सुस और वो जो जुस्तजू जी थी जी जी वो थी ठीक कि मैंने दाई ही बनना है। जी माशाल्लाह। लेकिन सीधी बात मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, लेकिन शौक था। कुरान ने असल में जो है ना, माशाल्लाह कुरान ने कहीं उस शौक को जो है तरवीज दी मजीद और उभारा उसको। उभारा। वाह। और इसी दौरान में फिर डॉक्टर इस्रार साहब से भी तारुफ हासिल हो गया था, जाहिर बात है। बेशक बेशक, कि डॉक्टर मारूफ शख्सियत है, बड़ी टीवी के स्कॉलर हैं, शागिर्द थे, जी। तो उनके फिर बयानात सुनने, उनके दुरूस सुनने, उससे कुरान का मजीद जो है वो फाहम हासिल हुआ। फिर वहां से सही जो है ना दाई बनने का शौक, अच्छा डॉक्टर इस्रार साहब की ठीक है। तकारीर, उनके दुरूस, माशाल्लाह, उनके खुतबे और वो दर्स उससे वगैरह। अच्छा, दाई बनने का ना शौक जो है वो परवान चढ़ा। सही, परवान चढ़ा। और माशाल्लाह। उस क्लास में मैं इसी नियत से बैठा अच्छा, कि इंशाल्लाह ताला मैंने भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब डॉक्टर अब्दुल साहब ने कहा कि अगली क्लास आपने से पढ़ाएगा, तो जी। मुझे बहुत ही खुशी का मौका था। यकीनन सर, बड़ा ऑनर की बात है, मैं समझता हूँ बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल साहब ने जाकर के उस्ताद हैं, जी उन्होंने फिर किस तरीके से उनसे काम लिया। उन्होंने नेक्स्ट जब क्लास पढ़ाई, तो उन्होंने क्लास में हफ्ते के पूरे हफ्ते के दौरान एक दिन जो है वो रिवीजन के लिए रखा, अच्छा और कहा कि रिवीजन आपको आमिर से करवाएं। अच्छा माशाल्लाह। जिस तरह एक अच्छा उस्ताद अपने एक काबिल और लाइक शागिर्द को जब तैयार कर रहा होता है, उन्होंने उसी एतबार से आपको वो मौका दिया एज अ टीचर असिस्टेंट कि आप आए और लोगों को रिवाइज कराएं। यहाँ माशाल्लाह बस मैं थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन कर दूंगा सर। कि आपने कहा कि अपने काबिल और लाइक शागिर्द, नहीं सर, आप कसरत नफ्सी तरह काम लें। ये हकीकत है। नहीं अल्लाह लेकिन माफ। मैं ना काबिल था, ना नहीं लायक था। नहीं नहीं खैर, वो तालीमी हिसाब से भी, दुनियावी तालीम के हिसाब से भी कोई ऐसा है हम नहीं सर, उसकी वजह यह है कि मेरे तो आप उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मेरे लिए बहुत मोहब्बत की जगह है। और मैं ईमानदारी से भी अगर बात करूं, जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आपकी शख्सियत के अतबार से, कि आप एक बहुत ही मुनकसरुल मिजाज और मिलनसार आदमी है। और जो आजिज आदमी होते हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी आजिज़ी देन है, तो अल्लाह आपको हमेशा ऐसा आजिज रखे। मैं तो बाहर कैफ
बहसियत से एक छोटा भाई और एक शागिर्द होने के तहत ये कभी जुर्रत नहीं कर सकता, और हकीकत भी ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह कि आप माशाल्लाह इल्म से भरपूर शख्सियत हैं, और आप चीज़ों को, आपकी आई थिंक ब्यूटी है जो मैं शायद ऑडियंस को लग रहा हो कि मैं अपने उस्ताद के सामने बैठ के उनको बटर अप कर रहा हूँ, मक्खन लगा रहा हूँ, लेकिन वो मैं हमेशा शेक्सपियर की एक कोटेशन जो है वो कहता हूँ कि द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी तारीफ करते हैं कुरान की प्रीफेस में कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो खालिक को भी तारीफ पसंद है, मखलूक को भी पसंद है, और बड़े अदब के साथ अपने उस्ताद के सामने इजाज़त देते हुए उन लोगों से भी माजरत करूँगा कि जो लोग समझते हैं कि तारीफ़ करना उनको लगता है कि मक्खनबाजी है या वो बटरिंग है, और वो उनको लगता है कि ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो हदीस भी कई लोग गलत कोट करते हैं, सॉरी टू से, कि जी वो कोई तुम्हारे सामने तारीफ करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खाक की चुटकी उठा के उसको मुंह में फेंक दो। तो मेरी और बहुत सारे उलमा बहसियत और बस शमूल मेरे टीचर जो हैं आमिर सुहेल साहब की इंटरप्रिटेशन ये है कि उससे मुराद खुशामद है, लेकिन हकीकी मायनों में अगर आप किसी को अप्रिशिएट करें, और वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि एप्रिसिएशन जो है आपके मोरल को बढ़ा देती है। और आप जैसे जो अतालीक हैं, जो उसातिज़ा हैं, उनके शायान शान हमारे अल्फाज भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि कम अज़ कम हकीकी मायनों में जहाँ 40 लोग अगर पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और सर से गुजर रही है, कोई एक बंदा टीचर के साथ रिलेट करके उसको अप्रिशिएट करे कि जितनी मोहब्बत और मेहनत से मैं अपनी क्लासेस में आपको जिस तरह देखता हूँ सर, कि आप इतनी दिलजमी से और इतने शौक से और इतनी तफसील से पढ़ाते हैं, और आपको शायद उल्टा लग रहा होता है कि यार ये स्टूडेंट कहीं बोर ना हो जाए या इनका वक्त तो नहीं ले रहा, जबकि मैं समझता हूँ जितने मुझ जैसे नालायक तालिब इल्म है वो इल्म की वाकई अगर तलब रखते हैं तो उनके लिए तो खुश नसीबी की बात है कि आप इतने खूबसूरत अंदाज में, आप जैसे मुबल्लिग का हमें वक्त मिल जाता है, और आप दुनिया की भी मिसालें इतनी प्यारी देते हैं, और दीन से तो आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत दे सर, जज़ाकल्लाह। यहाँ बस मैं एक बात ऐड कर दूं कि ये आप इसलिए ये बातें करें, आप खुद एक अच्छे इंसान, सर आपकी मोहब्बत, नहीं जज़ाकल्लाह क्योंकि जो सर। अच्छा इंसान होता है ना उससे दूसरा भी अच्छा सर सलामत रहें, सलामत रहें सर, सलामत रहें, आपको खुश रखे। आपको भी सर, आमीन। और ये जो बात आपने कही है बिल्कुल जी सर। मैं इसे सेकंड करूंगा। मौलाना तारिक इब्राहिम साहब अल्लाह ताला जिंदगी से, आमीन सर, आमीन। उन्हें जब हमारे इन प्रोग्राम्स के बारे में पता चला जी सर। कि अरबी के हवाले से फैसलाबाद में डॉक्टर तस्मी साहिब और आमिर सुहेल रहेंगे कोर्स कराते, तो स्पेशल मिलने आए थे हमें माशाल्लाह सर। और उन्होंने मुलाकात करके खास तौर पे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि मेरे शहर में वाह ये काम हो रहा है और मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा मैं स्पेशल जाके उन्हें अप्रिशिएट करूंगा। माशाल्लाह। उन्होंने बताया कि जो हदीस कोट की जाती है वो खुशामद के बारे में है, तारीफ के बारे में भी है। अप्रिशिएशन तो इंसान को बूस्ट करती है सर, उसको चार्ज करती है, उसको मुझे लगता है कि अपने मोटिव के ऊपर और जो भी आपकी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव है उस पे आपको कायम रखती है सर। तो बात हम खाम नहीं जो है ना कि जी तारीफ की करनी के सर पे न चढ़, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाकी वो सर पे चढ़ने का तो वो उसे अपनी तरफ सर लोग की ला भी लाने देते आप फैसलाबाद से हैं, मेरा तो नानका भी फैसलाबाद है, तो ताड़े तो मैं अदब ना ही कहा कि वो लाना भी आंदा लोगों को, लेकिन बेहतरीन हो गया इस तरह से मुझे वही इंटरप्रिटेशन माशाल्लाह। अच्छा सर, उन्होंने मुझे अच्छा सर क्लासेस में मुझे एक रिवीजन का दिन दिया, और मैं आपसे अगर शेयर करूंगा तो सर डॉक्टर तस्मी साहब की क्लास जो है वो अब्दुल्ला 100 लोगों तक होती थी माशाल्लाह, और जब मैं रिवीजन के लिए जिस क्लास में गया तो 10 लोग भी नहीं बैठे थे। अल्लाह अकबर। जाहिर बात है उनको लगा कि जनाब ये, हाँ मैं समझ गया सर, नाम देखता है आते हैं किसी दर्स के लिए तो हजारों लोग जमा कर लेंगे बिलाशुबा। डॉक्टर तस्मी साहब आते हैं तो हजारों नहीं होंगे, सैकड़ों हो जाएंगे। और अगर आमिर सुहेल किसी चीज के लिए आएगा तो बंदे पूरे करने पड़ेंगे। अल्लाह रहम करिए, पुरानी बात हो सकती है, अब तो ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने 8-10 लोग बैठे थे, लेकिन वो 10 लोग भी मेरे लिए बहुत थे माशाल्लाह। और यकीन माने मैंने 2 नफिल नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अच्छा, हाजत के नफल पढ़े कि भाई मैं कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरी टांगे यकीन करें जिंदगी में बाकी वो कांपने और वो कांपे टांग रही थी। सही करना पड़ेगा उस अल्लाह तो किस तरह से था। अच्छा, कुरान ने हौसला दिया माशाल्लाह। जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे सामने जो लोग थे, कोई इतनी दाढ़ी वाले, अल्लाह, किसी ने मामा बांधा हुआ है, किसी ने वाह, मतलब वो जो एक मेहराब पढ़ा हुआ जो एक रवायती है, मैं समझ गया।
यकीन माने ऐसे दिल थक से रह गया कि अगर उन्होंने कोई बात पूछ ली, सवाल कर लिया और मुझे नहीं आता तो मेरा क्या। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लेके वो रिवीजन करानी शुरू की और फिर आज का दिन है, अल्लाह का एहसान है आपके सामने ये। माशाल्लाह सर, क्लास भरी होती है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में बल्कि कल रात को ही हमारी क्लास में वो जगह नहीं थी, तो वो एक साहिब आए, वो उतरे सीढ़ियाँ, तो उन्होंने देखा कि जगह नहीं है, वापस जाने लगे, तो फिर उनको बुलाया कि वो एक कोने में नशिस्त है, आप लेट आए हैं तो वहाँ बैठ जाएं। तो अभी तो अल्लाह की बड़ी रहमत है माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, ऑडियंस मेरा ख्याल है यकीनन जानने के लिए बड़ी मुश्ताक होगी, बेचैन होगी कि अरबी ग्रामर कुरान को सही तौर पर समझने के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। क्योंकि एक रवायती सोच है कि यार आपने लैंग्वेज सीखनी है तो अरेबिक लैंग्वेज डायरेक्टली सीख लें, कोलोकियल एक्सप्रेशंस। तो सर अरबी ग्रामर कुरान को समझने के लिए क्यों ज़रूरी है, सिर्फ रेगुलर वोकैबुलरी क्यों नहीं? देखिए जी, अरबी जुबान पर अल्लाह ताला ने खुद इस बात को बयान किया है कि ये लिसान मुबीन है, बिल्कुल वाज़ेह क्लियर माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अरबी ग्रामर आपको जुबान की डेप्थ में लेके जाती है। कैसे, मैं मिसाल देता हूं। सर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये मिसाल कोट की थी, तो उसके बाद मैंने उनसे मिसाल जो है वो अच्छा ले दी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कोट करता हूं। सर उन्होंने एक दफा ये बात की थी कि अरबी जुबान से मैं कैसे पता चलता है। उन्होंने एक जुमला बोर्ड पे लिखा और कहा कि जुमले को पढ़े, और जुमला था कि क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे छुरी मारो। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे छुरी मारो। क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे छुरी मारो। ठीक। उन्होंने कहा कि जी इस जुमले को कोई भी पढ़े अपने अपने हिसाब से पढ़ सकता है। ठीक है। हो सकता है जिसने ये जुमला लिखा है ना, जिसने कहा है, उसका वो मतलब ना हो जो पढ़ने वाला पढ़ रहा है। अच्छा समझ रहा है कैसे? सर सर उन्होंने कहा कि लिखने वाले ने लिखा था, क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे छुरी मारो। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या बिल्कुल ठीक मैंने है। हाँ कि मैं तो इन्वॉल्व नहीं था। मैंने तो कहा ही नहीं था। हाँ कि तुमने खुद छुरी मार दी, बहुत आला, वाह। दूसरा पढ़ने वाला इसको ऐसे पढ़ सकता है, क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे छुरी मारो। हाँ हाँ, क्या बात, एक नई जहद निकल रही है। मैंने तुम्हें तो कहा ही नहीं था। हाँ, किसी और को कहा, तुमने क्यों मार दी। हाँ, हो सकता है तीसरा इसको पढ़े और ये समझे, क्या मैंने तुम्हें कहा था इससे छुरी मारो। मैंने तो उसे मारने के लिए कही थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। फिर एक इसे मतलब ये भी लिया जा सकता है, कोई पढ़ने वाला ये भी इसे पढ़ के समझ सकता है कि कहने वाला ये कह रहा है, क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे छुरी मारो। हाँ, कोई चाकू, कोई मतलब चाकू के लगा पिस्तौल मार दो। हाँ एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। ये देखिए कि जो जोर है ना, हाँ, मैं पे है, तुम्हें पे है, उसे पे है और छुरी पे है। इंटोनेशन की गेम है सारी, बस स्ट्रेसेस, पॉजेस एंड आपको इंटोनेशंस। बताती है कि माशाल्लाह, जुमले में किस लफ्ज पे जोर। क्या बात है। इसको ग्रामेटिकली स्ट्रेस, पॉज एंड इंटोनेशन कहते हैं, मेरी ऑडियंस समझती है। आमिर भाई ने बड़ी खूबसूरती से मिसाल दी। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहा करता था कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, लेकिन ये इससे ज्यादा फसाहत और बलागत से उन्होंने बयान किया कि वो दो मतलब थे। आज मैंने भी सीख लिया, अगली दफा मैं उधार लेके आपसे लोगों को बताऊंगा। आमिर साहब देखें,